Hello, everyone, and welcome to the next episode of Tech Talks podcast. I'm your host, Sanskriti Karam, and I'm Krishisha. Today we have with us Vikram Malan, who is a seasoned virtual CTO with over 20 years of IT leadership experience. He has been helping startups overcome the biggest technological challenges. Welcome, sir. Hi everyone, this is Vikram Malyan, your virtual CTO. so, so, what does the term virtual CTO, as you just mentioned right now, right? What does it actually mean, and what is its role? So things are very virtual these days, so we have created this virtual CTO services. Basically, it is a just kind of on-demand rental kind of service. So whenever you need any technical solution or services, you don't need to hire the full-time CTO. You may have a startup may struggle with the budget constraint mainly. If you hire a virtual or a full-time CTO, it will cost you a lot. Like the whole budget will go to the CTO, CTC. So we have introduced the services called virtual CTO, kind of fractional CTO. So they will work with you, or I will work with you for some 2-3 hours in a week, so that to understand your problem and solve your problems. With that, more than 25 years of IT experience and more than 15 years of purely leadership experience. So that's an amazing amount of experience. Could you tell us more about your journey? How did you become a virtual CTO? So the virtual CTO is started just around in last this March only. But the technical journey started in 2000 when I joined my tech graduation. So my tech journey started in 2000. And my family background, we have all the engineers background. My brother is also software engineer. So that inspired me as well. So I also joined the computer science, and tech was started. That time internet was not there. So after 2000, in 2004, I've started doing my job with the different companies in Delhi or NCRs. And in the early ages, early that in the 2004 to 2007, I worked mainly in the web designing companies like web to develop the websites for the different peoples, maybe from the US mainly, because the company has the client from the US. But that part is fascinating for me, that I'm solving the problem for the peoples, directly to the peoples, not to the big corporates, which basically जो बड़ी कंपनीज में होता है कि आप छोटे से पार्ट पे आप काम करते हो, मे बी फ्रैक्शन ओनली 1% और 2% काम आपके पास मिलता है. तो वो चीजें मेरे को एक्साइट करती थी कि मैं डायरेक्टली क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम को सुन रहा हूँ और कोई सोल्यूशन बिल्ड कर. तो कुछ सोल्यूशन ज्यादा नहीं था, कुछ वेबसाइट्स थी जो उनकी जो सर्विसेज को शोकेस कर रही थी या प्रोडक्ट को शोकेस कर रही थी. तो कुछ ज्यादा डायनेमिक वेबसाइट्स नहीं बनाई शुरू. फिर डायनेमिक के लिए मुझे लगा उस टाइम पे सिर्फ फिर जावा, मुझे लगा कि जावा सीखनी चाहिए डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए. तो J2EE मैंने सीखा, कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए, J2E में जॉब भी की, जावा डेवलपर, एज ए जावा डेवलपर फिर मैंने जॉब स्टार्ट की. और वहां पे एक बहुत बड़ा इशू मेरे को फेस हुआ, या मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ये ना एक्साइट नहीं कर रहा है, इन द सेंस कि वो जो वहां पे हम जो सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे थे ना, वो बहुत ही लार्जर देन लाइफ था, कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हमें एक छोटा सा पार्ट मिला करने के लिए. तो वो रियल लाइफ में कनेक्ट नहीं कर रहा था लोगों को, कि मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ. कुछ आइडेंटिटी मिसमैच हुआ. तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कैसे हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ जावा के साथ ही कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए कि अगर किसी के लिए कोई वेबसाइट बनानी है, डायनेमिक वेबसाइट, डायनेमिक फीचर्स के साथ कुछ चीज उनको बना के देनी है, तो कैसे बना के दे सकते हैं. फिर जावा में अगर वही चीज हम करते हैं तो हमें बहुत हैवी, उस टाइम पे काफी हैवी हमें वर्चुअल सर्वर्स लेने होते थे, और जावा उसमें वो काफी कॉस्टली आती थी. तो नॉर्मल वेबसाइट जो डायनेमिक वेबसाइट है जावा में बनानी ना काफी कॉस्टली पड़ रही. तो फिर मैंने पीएचपी सीखी और फिर मैं पीएचपी में मूव ऑन हो गया. वो मुझे काफी एक्साइटिंग लगा, क्योंकि उसमें होस्टिंग काफी सॉल्यूशन, मतलब वो चीपर थी उस टाइम. तो
बहुत ही सस्ते में मिल रही थी होस्टिंग। तो आई थिंक अंडर $1000 में हमें एक cPanel होस्टिंग मिल पा रही थी। तो उससे क्या हो रहा था, जो भी हम डायनेमिक वेबसाइट बना रहे थे वो हम इंस्टेंटली होस्ट कर पा रहे थे, और जो भी हमारे लोकल क्लाइंट्स थे, मतलब लोकल जिन भी लोगों से हमें मिल रहा था, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेनली नॉट वेबसाइट, कुछ वेब एप्स मेरा हमेशा माइंड में रहता था कि कोई सोल्यूशन वेब एप्स के थ्रू मिले उन्हें। वेबसाइट जो पोर्टल होते हैं उनके लिए मैंने उनके लिए बनाना शुरू किया, तो वो काफी हिट होने लगा। और सबसे पहले मेजर ब्रेक थ्रू आया मेरा, मैंने सबसे पहले जैसे ही मैंने जावा को छोड़ के मैं PHP में शिफ्ट हुआ, लर्न किया, 6 महीने मेरे को लगे। तो मैंने लर्न करने के बाद क्या किया, सबसे पहले एक मैट्रिमोनी वेबसाइट बनाई, जिससे कि मैं अपनी सारी फीचर्स और सब चीज उसमें बना पाऊँ। तो मैंने पूरी फीचर्स जो कि एक मैट्रिमोनी वेबसाइट में होनी, वो मैंने सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बनाई, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ उनके लिए बनाई। वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जस्ट एन फॉर माई सेल्फ, वो एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, लेकिन बाकियों के लिए एक सर्विस थी जो कि उन्हें एक कम्युनिटी सर्विस मिल गई। तो उसमें मैंने सारी फीचर्स जो कि एक मॉडर्न वेबसाइट में और कमर्शियल जो कि शादी.com या उस टाइप की वेबसाइट थी उनमें अवेलेबल थी, वो सारी मैंने उसमें दी, जो कि ये काफी मतलब मेरी कम्युनिटी में उससे मेरे को उससे मल्टीपल बेनिफिट्स हुए। कम्युनिटी में एक लोग मेरे को जानने लगे, क्योंकि मैंने कम्युनिटी के लिए बनाई है और अपनी कम्युनिटी के लिए बनाई है। और प्लस वो वेबसाइट जो मेरे क्लाइंट्स को भी पसंद आई, उनको समझ आया कि ये क्या काम कैपेबिलिटीज हैं, यूजर सेंट्रिक वेबसाइट या यूजर सेंट्रिक पोर्टल कैसे बना पाते हैं, वो सब मेरे को टेक्निकल नॉलेज आ गई उस टाइम पे, उस एक्सपेरिमेंट की वजह से। वो काइंड ऑफ डमी प्रोजेक्ट था मेरे लिए, उसको मैंने कमर्शियली भी लॉन्च किया और एज ए फ्री लॉन्च किया, मतलब उससे कोई रेवेन्यू अभी तक नहीं लिया मैंने। बट उससे मुझे चार पांच मैंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स भी मिले, और प्लस क्लाइंट के दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मेरे मिलने शुरू हो गए। तो वहां पे हमने धीरे धीरे इसी तरह से यूजर सेंट्रिक जो भी प्रोजेक्ट्स थे, फिर मैं हमने धीरे धीरे कुछ कस्टमर्स की प्रॉब्लम के लिए CRM से, जैसे कॉल्स मैनेजमेंट है, कस्टमर से जो लास्ट बात हुई है वो कैसे हम रिकॉर्ड करें, कस्टमर ने कहा कि हमें 10 दिन बाद हमें कॉल करना, उसे कुछ रिमाइंडर देना है, तो वो सब सॉल्यूशन हमने छोटे छोटे सॉल्यूशन बनाने शुरू किए। तो वो चीजें धीरे धीरे मूव ऑन होने लगी। एंड तो ये सिलसिला हमारा लगभग 2008 से लेके शुरू हुआ था, और वो 2015 के आसपास तक पहुंचा। उसमें हमने काफी सारे सॉफ्टवेयर बनाए जो कि लोगों को, मतलब लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। वो मेरे लिए फैसिनेटिंग ज्यादा था कि जो उनकी एग्जैक्ट बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि नॉर्मल कॉल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ERP भी हमने बनाया एक छोटा सा, जिसमें सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स भी मैनेज कर पा रहे थे, जिससे कि फिनिश गुड में जो प्रोडक्ट उनको बनाना है, मतलब कि उसमें 10, 15, 20, 50 तरह की चीजें लगनी है, उनकी क्वांटिटी वो स्पेसिफाई करते थे, एक मेरे को प्रोडक्ट बनाने के लिए किन किन रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो भी हमने बनाया। तो वो काफी लोगों को, मतलब उससे काफी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हुई लोगों की। एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी हमने बनाया, जो कंस्ट्रक्शन जो हमारे 4 फ्लोर्स वगैरह जो नेबरहुड में बनते हैं, उनके लिए भी मटेरियल्स काफी सारी रिक्रूटमेंट वो करते हैं। सर्विस मैनेजमेंट है, लेबर मैनेजमेंट इसमें होती थी, पेमेंट्स का, पे आउट्स वगैरह का सारा है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते थे, जो भी उनके सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते थे, वो सब हमने उसमें रिकॉर्ड किया। तो उससे भी उन लोगों को काफी, मतलब मेन था कि हमारा की जो छोटे वेंडर्स हैं उनके लिए क्या हो, तो ये सॉल्यूशन उनके लिए काफी हेल्पफुल रहे थे। फिर दौर आया मोबाइल ऐप का, 2018 ऑनवर्ड्स के आसपास जो है काफी मोबाइल्स आने लगे। कुछ एक तो हमने मोबाइल ऐप बनाने लगे, क्योंकि इंटरनेट काफी बूम कर रहा था, जियो आ गया था आई थिंक 16, 17 के आसपास। तो लोगों ने मोबाइल्स को ढंग से यूज करना शुरू किया, तो मोबाइल ऐप्स का बूम आया। लेकिन मोबाइल ऐप्स में हमने ज्यादा नहीं किया था शुरू में, तो ज्यादातर फोकस वेब पे ही रहा कि जो भी सोल्यूशन हम देंगे, क्योंकि इसमें एक एडवांटेज हमें मिल रहा था कि हमारा POC जो होता है वो इंस्टेंटली हो जाता है। इंस्टेंटली मतलब कि मोबाइल ऐप का डेवलपमेंट हमारा 10 टाइम्स स्लो होता है एज कम्पेयर टू वेबसाइट। तो ये मेन मुझे चैलेंज लग रहा था, लेकिन लोगों को तो मोबाइल ऐप ही पसंद थी, तो वो शुरू में हमने मोबाइल ऐप कम किया। लेकिन फिर क्लाइंट ने हमें समझाया कि भाई हमें तो मोबाइल ऐप ही चाहिए, तो हमने वो
एक तो मोबाइल ऐप्स बनाए। तो शुरू में तो ज्यादा नहीं बनाए, एक आई थिंक सोल्यूशन सैलून के लिए हमने बनाया था, स्किल प्रो समथिंग कुछ नाम था उसका।